win-win situation, as it would be an interaction of skills and generation of more livelihood for more people. Usha Silai has started an initiative of teaching women to stitch, tailor, and repair machines, and graduate into fashion initiatives that empower women. Usha Silai Machine are also ready to collaborate and bring in a change, a new beginning for affordable, slow fashion. Okay. Educating and sensitizing the customers about the value and significance of the handlooms and the eco-friendliness, the sustainability, the cultural diversity, the social impact, it has to be done. TV and online media can play a great role by having short films, perhaps on, in the news channels. We see how each government is trying to promote their government on those channels. So why can't we promote our handlooms, or let's say our crafts, on those channels? Efforts have to be made to create a fairness of handloom mark. We just discussed this. The government, of course, as I said, has taken a lot of initiative, but it is just not enough. I mean, I don't know how many of you, of course, you belong to this creative community, so you may know, but when I talk to my civil friends, they always tell me that they are hardly unaware कि ये है क्या चीज़, what is it? So I think we have to have, again, more of advertising and telling people about these acts and laws. Banning goods and penalizing companies and organizations that copy design and techniques should be dealt with sternly. I don't want to name the organization, but on one hand, they have the CSR program running for the community, and on the other hand, they have a very popular brand selling copied block prints, machine embroidered yokes. So I think this is where we need some kind of vigilancy to come in. I think we'll have to wind up. Okay. Just, yeah. Just last point. Okay. I would, my God, okay, ठीक है. I thought I had 10 minutes. Yeah, again, as a facilitator, I would say more institutes can introduce textile with fashion as a specialization. Design Institute should promote workshops and projects for handloom weavers. The Javaja project done by NID is a very good example. The course on craft and handloom should be introduced across all disciplines of design education. I just read, the time I was looking for material, I just read that Malaysia starting from this onwards, the government has made mandatory for civil servants to wear batik every Thursday. This is done to promote the livelihood of the dying batik art. We could do something similar. Let's reinvent the concept of Friday dressing in India with handloom garments. Khadi stood for patriotism. People did wear khadi and handloom with great pride. Let's bring it back. Let our national flag also be furled with khadi. We need brand ambassadors for handlooms. We need film stars, sportsmen, to come in and become our brand ambassador. We need more fairs like Dastakar and Delhi Heart for the sensorial experience. To sum up my talk, I would say that we need stronger and absolutely implementation of the government policies and schemes, awareness in the market where these hallmarks, the handloom mark and silk mark and wool mark is concerned. I think the awareness has to be spread. I guess handloom is the future as recognized by many intellectual minds, and surely it will help in the revival of our planet. I would like to thank Living Looms of India for giving me this opportunity
to share my thoughts. Thank you. Jai Hind. Thank you, Alana. Now I got it right, huh, Alana? Alana, okay, the emphasis. I remember the L. Okay, I don't know whether we have any time for questions or comments, but because we should, there's one question. Can we take one? Yeah, okay, go ahead. And please just let one of the panelists know who it's directed to. This is directed to Alana. Okay. This is a gray area for me. I work with a weaver in Maheshwar, and through her I've met the woman who does the warping, separately the person who does the drafting and netting and so on. So this one woman who does the warping, she sells at home, in her home, she sells Maheshwari duplicates. So on one side she does warping for handloom, and then she sells Maheshwari duplicates, and she has no real qualms against it. I have to keep checking myself, what is my elite, anglicized, urban educated view on this. For her, it's like, well, this is what I wear, and this, polyester sarees, and this is what we can afford. So there's this on one side. On the other side, I was listening to you speak, and you keep saying we. We need to protect companies from designers from stealing or labels from stealing. You mentioned some machine embroidery. Who is the we there? Good question. And who, it's a gray area. I don't know which is black or white. But is the we the urban, elite educated, slightly more well off? Are we the ones deciding? That's that. Okay, I would say we is all the people who are present today in this room, because we are all interested in the revival of the crafts, of the handlooms, and it is we who has to take the initiative. I think if we 100 people, 50 people take the initiative, we'll bring in more and more people in with us. And about the person selling, the duplicate, the synthetic saris, and also working with the authentic material. Well, it's you can't say no to them, because for them it's survival. I'm glad that the way I would look at it, that I'm glad that she is pursuing her traditional craft. So what if she's selling the polyester saris? And that's the saddest thing. The world today, world over, despite of knowing the shortcomings and the ill attributes of polyester, nobody wants to listen, because it's cheap. It's more practical as a fabric. You just have to wash it and wear it, and it's easy to maintain. And the most important thing, it's cheap. Okay, so I think we can just conclude. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. And thank you. Thank you for a very insightful session. We have heard various perspectives on how we are going to go about reinvent the loom, and there have been some interesting views and contrasting views that have come from the panel, so it's a lot of food for thought. But I hope as people we will be more responsible, which is one of the things that have come through, while also looking for ways to sort of keep up with the evolving market and ensure that whatever looms that we have, authentic looms, are available for consumption for people everywhere. Talking about markets, we also have an exhibition running right next door where 32 weaving communities have come and placed their goods there. So whenever you have the time, please go and have a look at, and please spend some money if you have some. So yeah, thank you so much, panel. Thank you so much for being here. And as a token of our appreciation, we would like to give you, felicitate with some goods. And I hope they take digital payment. yes, they do take digital payments, yes. After promoting it so much. Yes. Yeah, and please for a photo. Thank you. We can do a photo set, photo of us. Yeah.
A big round of applause, everyone, for the panel. I request everyone to remain seated for our next session, which is on revitalizing traditions, empowering artisans to new age handloom enterprises. For the session, I would like to welcome Dr. Madhura Datta, Culture and Development Specialist, who will be moderating this session. Ma'am, if you could please come up on stage. Please give a big round of applause, ma'am. I would also request the panelists for the session to take their place on the stage. Sujata Biswas, co-founder Sutta, Rashmi Bharati, co-founder Avani, and Nitin Pamnani, co-founder iTokri. Please take your places on the stage. Whether it be competition from mass production, infrastructure, market access, unfair pricing, or access to finance, a number of issues mar the development and sustainability of handloom enterprises. This session, Revitalizing Traditions, Empowering Artisans through New Age Handloom Enterprises, seeks to chart a pathway towards empowering artisans through new age enterprises. With this, I hand over the session to Dr. Madhura to take the session forward. Yeah. Thank you. Thank you for inviting me to this wonderfully curated conference. So the topic is Revitalizing Traditions, Empowering Artisans Through New Age Handloom Enterprises. So the three things that stand out from this topic, what I found interesting, are empowering, new age, and enterprises. We all know that internationally, culture of a country is increasingly being recognized as a capital or an asset for economic empowerment of people practicing it through generations. It is also recognized that cultural skills-based creative industry is also a driver of social and cultural empowerment. Because they are by nature community-centric, inclusive, and have a strong emotional connect for the makers. Now, there is another important aspect that is also being increasingly understood and realized is the ecological aspect of these local cultural industries, the fact that they are traditionally dependent on local resources and are ecologically sustainable. However, there are still considerable challenges in terms of an enabling and strong business ecosystem at the grassroots. This gap has been greatly fulfilled by the private sector of our country, almost like no other country in the world, considering the vastness and the diversity of this sector. The question is, what are the new age requirements that many of our fellow experts and speakers are already achieving or have achieved? First and foremost, we feel is identity creation and protection of intellectual property rights of the artists, which are still not understood very well in this sector. If we have to protect and promote the rich handloom industry of our country, then the recognition of the actual practitioners and their creativity need to be strengthened. Secondly, businesses continue to suffer from fragmented value chains. This we have been hearing from the morning. A strong integrated ecosystem for cultural entrepreneurship of weavers need to be ensured. So it is not just employing and providing wages to more and more weavers, but how to empower them to create more enterprises. Thirdly, I feel in the new age, most importantly, collaboration and cooperation of multiple stakeholders, including weavers and artisans of other regions, different regions, and of the world, need to be strengthened. It must not only include government and non-government actors, but also specialists and practitioners from allied sectors such as tourism, education,
technology, environmental studies, public policy, law, sociology, etc. Another critical aspect of collaboration is the need for digital equity. The pandemic has taught us like never before that digital equity and multi-stakeholder collaboration are fundamental to strengthen and support and promote this sector in the new age. So with this background, I would like to now go over to our panelists. And first, I would like to invite Rashmi Bharti, co-founder of Avni. And my question to Rashmi is, Rashmi, can you tell us briefly about the model you have that has contributed to people's economic empowerment as well as ecological sustainability of the region of your work? And how do you think these practices or learning can be mainstreamed for creating similar movements or initiatives inspired from it? Rashmi. Thanks, Madhura, and thanks, Access, for inviting me. So what I thought is, हिंदी में शायद ठीक है. पहले तो मैं जो काम हम कर रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगी. मैं करीबन 30 साल से उत्तराखंड में काम करती हूँ, हिमालय में. और इतने दिनों में हमने एक शुरुआत में तो ऐसा था कि जब हम वहाँ गए तो रोज़गार की बहुत समस्या है. बहुत सारे पहाड़ी लोग शहरों में आके बसते हैं, आदमी पहाड़ में नहीं रहते. किसी गांव में एक भी यंग लड़का नहीं है. अगर अर्थी उठेगी तो किराए के लोग बुलाने पड़ते हैं, लेबर बुलानी पड़ती है. तो ये सच्चाई हमने 96 में देखी और ऑलरेडी पलायन बहुत हो रहा था. सवाल ये है कि पलायन हम कैसे रोक पाएंगे. क्या हम शहरों में बिठाएंगे सबको जहाँ सारी सुविधाएं हैं, या हम गांव को इंटेलिजेंट बनाएंगे जहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों की कमी के कारण लोग गांव छोड़ के आते हैं. इतने सुंदर हवा पानी को छोड़ के स्लम में कौन रहना चाहेगा. इतनी इंटेलिजेंस सब में है, उसके लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं है. और गांव में जो लेवल ऑफ कॉमन सेंस है वो 50 डिग्री से ज़्यादा है. कॉमन सेंस की जो कमी है जिसके कारण हम अभी ग्लोबल वार्मिंग तक पहुँचे हैं, वो डिग्री पे निर्भर नहीं है. तो मैं एक्चुअली इस पूरी चर्चा को गाँव में लाना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारे जो पूर्वज हैं उनकी समझ और विजडम से हम आज का जंगल एंजॉय कर रहे हैं. मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेना चाहती हूँ. मेघालय का जो लिविंग ब्रिज है ना, लिविंग ब्रिज में हम सब तो लिविंग ब्रिज है ना, कि हमने 2 जनरेशन आगे का सोचा. हमने अपने पड़पोतों का सोचा और कहा कि आज चल रहे हो इस पे, तो इस वाली ये जो वो पेड़ की जड़ को गूंथते जाते हैं, और वो जब गूंथते हैं तो उससे एक ब्रिज बन जाता है नदी के ऊपर. और वहाँ पे मैंने देखा कि 2 ब्रिज हैं कि अगर नदी में बहाव आएगा तो ये ब्रिज तो पूरा बह जाएगा, इसके ऊपर एक और बना देते हैं. अब इतनी फोरसाइट और इतनी चिंता यदि हम आज करेंगे तभी कुछ बदल सकता है. बातें तो हम सभी कर रहे हैं, पिछले 50 साल से सेम कन्वर्सेशंस हैं. बदलना हम चाहते नहीं हैं क्योंकि हमें वही जीवन शैली चाहिए. हमें सारे एसी चाहिए, सारा पानी नल में लगातार आना चाहिए. सॉरी, मैं कहीं और जा रही हूँ इस चर्चा से, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब तक हम नहीं बदलेंगे ये कोई भी रियलिटी बदलने नहीं वाली है. जहाँ तक बात है क्राफ्ट की, क्राफ्ट कभी भी लाइवलीहुड ऑप्शन नहीं था लोगों के लिए. क्राफ्ट उनके क्रिएटिव एक्सप्रेशन का एक तरीका था, और क्राफ्ट गांव में जीवन का पार्ट है. एक महिला बछड़ा भी देख रही है, वहीं कटाई भी कर रही है, वहीं पानी भर रहा है, वहीं बछिया को भी देख रही है, और जंगल जा रहे हैं तो ड्रॉप स्पिंडल पे कटाई कर रहे हैं. ये रियलिटी है क्राफ्ट की. अब हमने क्राफ्ट को इनकम जनरेशन बना दिया तो स्वेट शॉप्स क्रिएट हो गए. हम कहते हैं कि वो स्वेट शॉप नहीं है, लेकिन हम ड्राइव कर रहे हैं इस बात को कि कितना बनाना है, कितनी अर्निंग करनी है और कितनी जल्दी बनाना है. तो हम तो लाइफस्टाइल भी तो इम्पैक्ट कर रहे हैं ना. हमें ये सोचना है कहीं ना कहीं कि जब हम शहर से जाके डिग्री लेके गांव में कोई बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, उसकी समझ के लिए कुछ रह तो लें वहाँ पे कुछ समय. हम बदलाव की बड़ी चिंता करते हैं लेकिन अपने को नहीं बदलते.
वहाँ पे मुझे थोड़ी तकलीफ है, क्योंकि उससे क्या होता है, जितने भी डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं उसमें हम उसका पार्ट नहीं है, हम चेंज मेकर हैं, पर हम नहीं बदलेंगे, हम उनको बदलेंगे, वो जो तीसरा जना है। तो वो तो कहानी फिर कभी ख़त्म ही नहीं होगी ना, क्योंकि बदलने वाला हमेशा वो तीसरा जना है, अब वो चाहे जहाँ से भी हम उसको ले जाएं। तो हमने इस मॉडल में जो काम किया है, सॉरी मैं कन्वर्सेशन को इस पे ले आऊँ, कि जब तक हम गांव की रियलिटी को नहीं समझेंगे, हम क्राफ्ट को भी उसी कॉन्टेक्स्ट में समझ पाएंगे। अब जब आय की ज़रूरत गांव में है, तो रिवाइवल कैसे करना है, तो हमने अपने लिए सस्टेनेबिलिटी को कैसे समझा। 96 में हमें ये बात समझ में आई कि रोज़गार की ज़रूरत है, लेकिन अगर हम टेक्सटाइल में काम करेंगे तो जो केमिकल डाई यूज़ हो रही है उससे इस फ्रेजाइल पहाड़ का मिट्टी और पानी खराब होगा, जिसकी गालियाँ मुझे पड़ेंगी 50 साल के बाद, क्योंकि तब तक तो पोल्यूशन हो गया होगा। वहाँ से हमने डिसीजंस ऐसे लिए कि हम केवल नेचुरल डाई में काम करेंगे, क्योंकि उससे पानी और मिट्टी को हम ख़राब नहीं करेंगे, जो पहाड़ की लोकल ऊन है उसी से प्रोडक्ट बनाएंगे। तो हम 30 साल से लोकल ऊन और नेचुरल डाई के रिवाइवल पे हमने काम किया। लेकिन जो इकोसिस्टम था, पानी का क्या होगा? अब हम ब्लॉक प्रिंटिंग कर रहे हैं राजस्थान, गुजरात में, पानी की क्या व्यवस्था है? क्या वो पानी रिसाइकल हो रहा है? क्या हम बारिश का पानी इकट्ठा कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, हम सोच ही नहीं रहे उसके बारे में। तो क्राफ्ट बचाने से क्या होगा कि हम पॉलिएस्टर के धागे से बहुत ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी कराने हैं, क्या वो सही है? और उस एम्ब्रॉयडरी को करने में 6 महीने लग रहे हैं। तो क्या हमें इन बातों पे सोचना तो पड़ेगा ना, कि वो केमिकल डाई जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही है, मैं इसको थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज से जोड़ रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि क्राफ्ट अपने आप में स्किल नहीं है, उसके चारों तरफ जो चीज़ें हैं उनको भी हमें हैंडल करना पड़ेगा। तो हमने एक प्रोड्यूसर ओन कोऑपरेटिव क्रिएट करी है अवनी संस्था के माध्यम से, उसका नाम है अर्थ क्राफ्ट। उसमें किसान और कारीगर ये दोनों जुड़े हुए हैं, और 14 साल से ये कोऑपरेटिव हिमालय के इस दूरस्थ क्षेत्र में अपने ऑपरेशंस का खर्चा बिक्री से चला रही है, ग्रांट बेस्ड बिल्कुल भी नहीं है। ये शायद मुझे लगता है बहुत कम वर्किंग कोऑपरेटिव्स में से होगी जिसमें कोऑपरेटिव के जो कारीगर हैं वो मैनेजर्स को तनख्वाह देते हैं काम करने के लिए। हम भी तो ऑडिटर को एम्प्लॉय करते हैं ना, हम सारी चीज़ों के एक्सपर्ट तो नहीं हैं, तो कारीगर क्यों नहीं एम्प्लॉय कर सकते? तो उन्होंने 14 मैनेजर्स को एम्प्लॉय किया है जो उनके सारे फंक्शंस को देखते हैं और उनको तनख्वाहें वो लोग देते हैं। तो प्रोड्यूसर ओन्ड है, डिसीजन मेकिंग काफ़ी हद तक गांव में है, सारी नहीं है, अभी हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो इस मॉडल को जहाँ हमें लगा कि अगर हम इतने दूरस्थ क्षेत्र में एक ऐसा मॉडल स्थापित कर सकते हैं जो पर्यावरण, लोगों और इनकम तीनों चीज़ों को इकट्ठा लेके चले, तो ये मॉडल कहीं भी रेप्लिकेट किया जा सकता है। छोटा है, सस्टेनेबल है और 20 साल से चल रहा है, आज भी चल रहा है। तो इस सोच को लेके मैं मधुरा जी की बात को आगे ले जाऊं। अवनी ने एक अवनी हिमालयन सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी क्राफ्ट एंड कलर की स्थापना की है। उसके माध्यम से हम उसे एक रिसोर्स सेंटर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। उसमें हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग करेंगे, क्योंकि इसमें प्लेयर कौन कौन है इस कहानी में। पहला प्लेयर तो वो यंग डिज़ाइनर्स हैं जो लाखों की संख्या में हमारे देश से हर साल में डिज़ाइन की डिग्री पढ़ के निकल रहे हैं। उनको क्या सस्टेनेबिलिटी की समझ है? हाँ, थियोरेटिकल है, लेकिन जब हमारे यहाँ इंटर्न्स, वॉलंटियर्स आते हैं तो वो कह रहे हैं कि यहाँ आके ही समझ में आया कि सस्टेनेबिलिटी क्या होती है। तो हमें लगा कि जब तक वो अनुभव नहीं करेंगे ना सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है, तब तक सिखाने से इनफ नहीं है। तो ये सेंटर एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग का सेंटर होगा, जिसमें अवनी का मॉडल एक प्रैक्टिकल लर्निंग मॉड्यूल है। उसके अलावा हम एकेडमिक करिकुलम्स डेवलप करेंगे, जैसे सृष्टि स्कूल ऑफ डिज़ाइन से बात चल रही है। हम सर्कुलरिटी, सस्टेनेबिलिटी और फार्म टू फैब्रिक, इन तीनों के अराउंड एक करिकुलम डेवलप कर रहे हैं। किसानों के साथ काम कर रहे हैं नेचुरल डाई उगाने के लिए। तो हम करीबन 1200-1500 किसानों के साथ काम करेंगे, क्योंकि देखिए हम सब यूज़र्स हैं नेचुरल डाई के। नेचुरल डाई ज़मीन से आती है, उसको उगाने के लिए किसानों के साथ काम करना पड़ेगा। पर किसानों के साथ कितने लोग काम कर रहे हैं? तो वो डाई आ कहाँ से रही है? आपको इन्फॉर्मेशन के तौर से बता रही हूँ कि हम महीने में, जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी गई, अहमदाबाद के एक प्रोक्योरर हैं, वो कह रहे थे 300 से 600 टन इंडिगो, सिंथेटिक इंडिगो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं हर महीने। पूरी डेनिम इंडस्ट्री को जा रहा है। हाईली कार्सिनोजेनिक, मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एंड वी आर ऑल वेयरिंग इंडिगो। क्यों? 90% इंडिगो जो मार्केट में है वो या तो सिंथेटिक है या वो मिक्स्ड है।
क्योंकि प्राइस फैक्टर उसका 20% कम है। अच्छा, हम कहते हैं केमिकल डाई बहुत सस्ती है इसलिए हम पहनते हैं। वो जो डॉक्टर का बिल बाद में देते हैं, कैंसर हो गया, फलाना हो गया, उसको अगर हम पहले ही इंटीग्रेट कर लें तो शायद हमें वो कॉस्ट समझ में आएगी। जितनी भी केमिकल इंडस्ट्री है, मैं एक इंडस्ट्री का एग्जांपल दे रही हूँ, उनका एक यूनिट सेमी ट्रीटेड पानी 28 लाख लीटर महीने का ओशन में डालता है। 28 लाख लीटर। और ये आपका कपड़ा बुन रहे हैं और उसको हम पहन रहे हैं। तो जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि जो कपड़ा हम पहन रहे हैं उससे जंगल, ज़मीन और पानी के ऊपर पॉजिटिव असर लाया जा सकता है। जैसे मेरे साथ पहला सवाल ये होता है, क्या आप इतनी बड़ी डिमांड भर सकते हो? मैं नहीं कह रही कि नेचुरल डाई को से रिप्लेस कर दें हम केमिकल डाई को। मैं ये कह रही हूँ कि उसकी खपत को कम करिए, ताकि जितनी वेस्टलैंड है, जैसे पहाड़ में पलायन से क्या हो रहा है, ज़मीनें खाली पड़ रही हैं। ज़मीनें खाली पड़ रही हैं तो सारा टॉप सॉइल बरसात में नीचे नदियों में चला जाता है। तो आप समझ लीजिए फर्टिलिटी तो ख़त्म हो गई। उसको बचाने के लिए हमने इंडिगो की खेती शुरू करी पहाड़ में करीबन 14 साल पहले, क्योंकि हमें कोई उगाता नहीं था इंडिगो। लेकिन रिजल्ट्स इतने ब्यूटीफुल थे, मैं आपको क्या बताऊं। पहले साल में 20 किसानों ने इंडिगो लगाया, तीसरे साल तक 300 किसान बिना किसी बात किए सीधे इंडिगो उगाने लग गए। उससे क्या चीज़ें हुई? पहली बात, वेस्टलैंड कवर हुई, क्योंकि इसको कौन नहीं खाता है? बंदर। अगर कोने के खेत में भी इंडिगो लगा हुआ है, बंदर उसको मुंह भी नहीं लगाता है, तो रखवाली की ज़रूरत नहीं है। और रखवाली की ज़रूरत नहीं है तो उनको पैसा ऐसी क्रॉप से मिला जहाँ पे उनको रखवाली नहीं करनी। और धीरे धीरे हमने देखा कि हमने वेस्टलैंड को रिकवर कर लिया उससे। नाइट्रोजन फिक्सिंग है आपका इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया। उससे जब उन्होंने क्रॉप उगाई, क्रॉप रोटेशन में 15 से 20% उनकी यील्ड बढ़ गई। अब इसमें हमें क्या मतलब, बड़ी थ्योरी थोड़ी सिखानी है। किसान इज़ वेरी इंटेलिजेंट, उनको पता है किससे फ़ायदा है। तो उन्होंने वो जो कन्वर्जन हुआ वो बहुत जल्दी हो गया और रिज़ल्ट ये हुआ कि हम एक प्योर प्रोडक्ट बनाने लग गए। सोचिए गांव-गांव में इंडिगो बन रहा है। मैंने तो 45 साल की उम्र में समझा कि इंडिगो कैसे बनता है। अब छोटे बच्चे देख रहे हैं कि हरी पत्ती से इंडिगो बन रहा है, ब्लू कलर। तो मैजिक है ना, वो अनुभव उन्हें याद रहेगा। तो हमारा काम ये है कि ये अनुभव जो है ना, जो रोंगटे खड़े करता है हमारे, जिससे हम भाग नहीं सकते, ऐसा अनुभव जब तक हम एकेडमिक में नहीं लाएंगे, किसान के साथ नहीं काम करेंगे। और तीसरी कम्युनिटी है साइंटिफिक कम्युनिटी। साइंटिस्ट क्यों बैठे हैं अलग अलग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में? कुछ भी रिसर्च क्यों नहीं है कि प्लांट प्रोपगेशन बेटर हो सके? नेचुरल डाई को जब हम उगा रहे हैं, प्रिमिटिव तरीके से उगा रहे हैं। मेरे को अभी तक कोई रिसर्च नहीं मिली है इसके ऊपर कि मैडर की प्रोपगेशन कैसे हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। आप टिश्यू कल्चर पे काम क्यों नहीं कर रहे? तो ये सेंटर साइंटिस्ट के साथ काम करेगा प्लांट प्रोपगेशन पे और प्लांट पैथोलॉजी के ऊपर, और एरिया स्पेसिफिक काम करेगा, उड़ीसा से लेके कर्नाटका, आंध्रा, उत्तराखंड। अभी फ़िलहाल हम यहाँ 3 जगह करेंगे काम। और तीसरा है उस पिगमेंट की एप्लीकेशन, वो पिगमेंट की एक्सट्रैक्शन कैसे और रिफाइन हो। अभी हम वैसे बाय द वे मेडिकल एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं। ओरल कैंसर की सेल स्टेनिंग के लिए हम नेचुरल डाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। सारे पिगमेंट इंपोर्ट हो रहे हैं, आपको पता है, विदेश से। मेडिकल फ्रेटर्निटी के सारे पिगमेंट स्टेन्स जो आते हैं बाहर से आ रहे हैं। सेम आपके आर्टिस्ट पिगमेंट्स हैं, जबकि ये सब इजीली यहाँ बनाए जा सकते हैं। तो इस मॉडल को हम कह रहे हैं देश के अलग अलग कोने में और विदेश में, क्योंकि जिन देशों में क्राफ्ट बचा है वहाँ के लिए भी ये बहुत उपयुक्त है। तो हम लोग बारिश के पानी 8 लाख लीटर इकट्ठा करते हैं। 100% पानी रिसाइकल होता है रोज़। 80% हम रिक्लेम करते हैं, उसी से डाइज उगाते हैं और सब्जियां उगाते हैं। मैं वहीं रहती हूँ और उसी को हम लोग खाते हैं। तो उसकी पूरी साइकिल में हम कोई ऐसी नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ नहीं डालते जिससे हमें खाने से नुकसान हो। तो उससे क्या है कि हमारी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस पूरी कहानी को अब हम रेप्लिकेट करना चाहते हैं। आई थिंक आई वाइंड अप हियर, आई टुक मोर देन Thank you, Rashmi. I think it's a fantastic example of an integrated model, which we all are mentioning, probably saying that different specializations should come together to build upon this. And it is not like those who are working in this sector as designers or as revivalists only. They need the support of other sectors as well. So it's a fantastic model. Thank you, Rashmi. Now I will go to our next speaker, Nitin.
The student is talking. What I would like to ask you, Nitin, is how do you ensure equity of artisans and weavers, the grassroots producers, in your model of business? And what kinds of investments are needed in your business to ensure the success and sustainability of both production and supply for the modern age consumers? पहले तो इतना अच्छा बोला इन्होंने ना, मैं वही सोचने लगा पूरा, और नीचे पहुंच गए बिल्कुल किसान में, पहाड़ में मैं, और मैं अभी 10 दिन पहले ही ट्रैक करके आया हूँ पहाड़ों से, तो मैं फिर वापस पहुंच गया। So happy to hear you, and I'm so delighted to be here and with all the such learned people. तो मैं उतना ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ चीज़ों के बारे में, बट फिर भी आई टोकरी हम लोगों ने शुरू किया था 2012 में, जब कोई इस तरह का कुछ क्राफ्ट का कोई ऐसा सेटअप ऑनलाइन स्पेस में नहीं था, एंड वी स्टार्टेड इट अराउंड देन. और देयर वर मल्टीपल रीजंस व्हाई आई वेंट इनटू इट, बट मोस्ट ऑफ इट वाज दैट आई जस्ट फेल इन लव विद हाउ थिंग्स आर मेड, एंड आई हैव नेवर, मैंने कभी भी पहले क्राफ्ट एग्जीबिशन नहीं देखा था. मैंने दस्तकार का एग्जीबिशन देखा पहली बार, दिल्ली में था मैं, तो उसके बाद इतना मुझे उससे लगाव हो गया कि मैं निकल ही नहीं पाया. मुझे लगा कि ये मुझे इसी के आसपास ही कुछ करना है. तो फिर इवेंचुअली मैं दिल्ली में था, मुझे छोड़ के था कि ग्वालियर जाना है. ग्वालियर इज़ माई होम टाउन, एंड आई वॉन्टेड टू डू समथिंग विच वेर आई कुड स्टे इन ग्वालियर एंड स्टिल डू वॉट आई वॉन्टेड टू डू एंड नॉट बी इन दिस दिल्ली. फिर अभी तो पता चल गया कि यहाँ दिल्ली में एक्चुअली मैं अच्छा डिसीजन लिया मैंने. अभी सब यहाँ पोल्यूशन में परेशान है. तो आई एम सो हैप्पी बीइंग इन ग्वालियर. सो ये तब शुरू किया, और इनिशियली 2-3 ही पॉइंट हम लोगों ने समझ लिए थे बहुत जल्दी कि कैसे हम एक आई टोकरी की आइडेंटिटी को बिल्ड करेंगे, कैसे हम उसमें आर्टिजन्स को प्लेस करेंगे, कहाँ हम इस पूरे सेक्टर में रुकते हैं, हमारी कहाँ जगह बनेगी. तो ये हमने रियलाइज़ कर लिया था कि हमें आर्टिज़न को आगे रखना है हमेशा, और आई टोकरी को पीछे रखना है. इसलिए हमने कभी भी आई टोकरी एज अ ब्रांड नहीं बनाया. हमने आर्टिज़न को ही जो है वो ब्रांड की तरह आई टोकरी में पुश किया. हमने जितने भी लोगों से सामान लिया, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करना शुरू किया, हमने उन लोगों के नाम से ही आई टोकरी पे सामान सेल किया. जबकि हम एक मार्केट प्लेस नहीं थे, ऐसा नहीं था कि कोई हमारे यहाँ फ्री लिस्टिंग कर रहा है, एंड वी वर प्रोक्योरिंग द गुड्स फ्रॉम आर्टिजन्स. बट हम लोगों ने इसको शुरू से ही एक ये बना के चले कि ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट की तरह लगना चाहिए. ऐसा लगना चाहिए कि हम आर्टिज़न के क्रिएशन के ऊपर प्रे नहीं कर रहे हैं, हम अपना ब्रांड उनके ऊपर नहीं बिल्ड कर रहे हैं, हम उनके साथ मिलके एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म, एक ऐसी स्पेस बना रहे हैं जहां हम एज आई टोकरी भी ग्रो कर रहे हैं, एज अ बिजनेस भी ग्रो कर रहे हैं, और साथ ही साथ एक आर्टिज़न की आइडेंटिटी भी जो है वो बन रही है, और वो एक बराबरी पे आ रहा है. इसको करते करते बाद में ऐसी स्टोरीज हम लोगों ने खूब सुनी. जिन लोगों ने हमारे साथ काम करा उन लोगों को हम लोगों के वाया कई लोगों ने जाना, एग्जीबिशंस में पहुँचे वो लोगों ने डायरेक्टली बल्क ऑर्डर्स लिए. लोगों ने ये मैं बात कर रहा हूँ जब इंस्टाग्राम नहीं था, जब फेसबुक नहीं था, जब कोई सोशल मीडिया नहीं था, ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं थी उस समय. अमेज़ॉन भी नहीं आया था. अमेज़ॉन भी 2014-15 के आसपास उन्होंने अपना सेटअप लॉन्च किया. तो ये इस तरह से हम लोगों ने आई टोकरी में शुरू से ही जो है वो इक्विटी वाली सिचुएशन बना के रखी है. और जहाँ तक दूसरा सवाल आपका क्या था, कैसा इन्वेस्टमेंट चाहिए.